ठीक है, फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thanks for joining us today. I am Zuhair. I am the VP of Professional Development at QIC. By profession, I am an earthquake scientist. I did my PhD from Monash University, Australia, my MTech from IIT Kharagpur, and my bachelor's from Aligarh Muslim University. Currently, I am based in Singapore and working as a research fellow at NTU Singapore. So, जैसा आपको मालूम है, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रैक IIT JEE एंड नीट एग्ज़ाम, जिस पे डिस्कस करने के लिए हमारे पास आज एक बड़े स्पेशल स्पीकर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वी विल आल्सो हैव ए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन फॉर हाफ एन आवर आफ्टर द टॉक। तो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग आवर स्पीकर फॉर टुडेज टॉक, आई वुड लाइक टू गिव यू ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट QIC, that who we are. So Kalam Youth Collective basically is a volunteer organization dedicated to the spiritual and professional development of Indian Muslim youth in particular and all in general. QYC was founded by alumni of top universities in India and abroad. Our vision is to help ourselves and others develop into well-rounded individuals with balanced personalities and become positive societal contributors. आज के हमारे इस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के इवेंट में हमारे साथ हैं ब्रदर सलमान शाहिद. So Salman is from New Delhi but currently based in Srinagar. Holds a BTech and MTech dual degree from the prestigious IIT Kharagpur. He serves as the co-founder of Rice Institute based in Srinagar, a distinguished educational cum social enterprise dedicated to reshaping the education sector in the Kashmir Valley. Under Salman's leadership, Rice has made significant strides in transforming the educational landscape of the valley. His commitment to excellence and innovation has earned recognition from prominent media outlets, including BBC, NDTV, Economic Times, and others. So, before starting the session, Salman Bhai, could you please walk us through your journey from IIT Kharagpur to Kashmir and founding Rice Institute? मुझे याद है आपको 2 जॉब ऑफर हुई थी IIT खड़गपुर में, विच वर हाईली पेड. उनको छोड़कर आपका कश्मीर जाना और फिर 2 दोस्तों के साथ राइस को शुरू करना. What had exactly driven you to make that decision? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन गाइस. सबसे पहले तो ज़ुहैर भाई बहुत बहुत शुक्रिया. आई वांट टू थैंक यू एंड योर टीम फॉर कलम यूथ कलेक्टिव फॉर like giving me this opportunity to talk to so many students. If I talk about myself, my name is सलमान शाहिद. जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, I did my BTech and MTech, which was a dual degree course, a 5-year course from IIT Kharagpur. उससे पहले most of my schooling was done in Delhi. Some part of my schooling was also done in Jeddah in Saudi Arabia. I was there for some years, around four years. I did my preparation of IIT JEE from Delhi, and like just after college, I, along with 2 of my friends, Mubin Masoodi from IIT Bombay and Imbisat Ahmed from IIT Kharagpur, who is my batchmate, we started Rise. Rise start करने का मकसद ये था कि first of all, of course, we are based in Srinagar in Jammu and Kashmir. यहाँ पे हमने Rise इसलिए start किया because we thought कि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इन कश्मीर. एजुकेशनल अवेयरनेस यहाँ पे बहुत कम थी. अभी भी लाइक उतनी ज़्यादा नहीं है, बट हाँ अब काम हो रहा है. IITs बहुत कम लोग जाते थे यहाँ से. सो व्हेन वी स्टार्टेड, बिफोर अस एवरी 2-3 years 1 or 2 students made it to IITs for the undergrad course, and that too they used to study outside Kashmir, probably in Kota, Delhi, etc. तो विच इज़ लाइक वेरी वेरी लेस. 2-3 साल में एक रीजन से एक स्टूडेंट का जाना बहुत कम है. एंड तो हमें लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और दूसरी बात है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग काम भी नहीं कर रहे थे इस फील्ड में. एंड वी थॉट कि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम ये चीज़ दिल्ली में करें या किसी और जगह पे करें, तो वहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस. सो इफ़ वी डोंट डू, समवन एल्स विल डू. बट यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट थी इन कश्मीर. So that was the reason we started, and we wanted to change the educational landscape of Kashmir. And आज की डेट में every year, तो first time 2016 में 4 students made it to IITs, made it to the list. And आज की डेट में every year around 5 to 10 students जो हैं वो IITs
जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो अगेन मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एज कम्पेयर टू लाइक कुछ साल पहले फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स वी आर प्लानिंग टू इसको भी थोड़ा और इंक्रीज किया जाए। कभी लाइक एक ऐसा टाइम आना चाहिए जब 20, 50, 100 स्टूडेंट्स यहाँ से हर साल IITs जाएं। सो आई गेस इन शॉर्ट ये है अभी तक की जर्नी। जज़ाकल्लाह खैर सलमान भाई, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल जर्नी रही है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोबारा से हमारे इनविटेशन पे QIC के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। तो आप जो है स्टेज आपकी है, यू कैन स्टार्ट द सेशन एंड जज़ाकल्लाह खैर अगेन, थैंक Sure. So what I have planned is कि अभी I mean I'll be speaking थोड़ा sequentially। तो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे जो गेस्ट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो प्रॉब्ली स्कूल्स 9, 10 से भी हो सकते हैं, 11, 12 से भी हो सकते हैं, एंड 12th पास भी हो सकते हैं। तो आई स्टार्ट सीक्वेंशियली ताकि सबको फ़ायदा हो। आई स्टार्ट के 9th क्लास से 9, 10th में क्या करना चाहिए इन शॉर्ट, एंड देन 11, 12th में इन शॉर्ट क्या करना चाहिए, किस तरीके से एक पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन रखना है, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ऐसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की, और एग्ज़ाम्स को किस तरीके से देना है। तो ये जर्नी आई विल डिस्कस टिल द एग्ज़ाम्स, मतलब JEE नीट तक किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। एंड सिंस ऑब्वियसली मैं खुद इस जर्नी से जा चुका हूँ, तो I'll try to use my experiences plus obviously अब since I am training a lot of students, तो उनकी experiences से भी I'll try to speak। तो सबसे पहली चीज़ है कि so आज का हमारा टॉपिक है कि how to prepare for JEE and NEET। तो JEE and NEET ये स्टार्ट कब होता है? तो स्टार्ट ये अराउंड 9th क्लास में होना चाहिए। तो 8th तक तो ठीक है, हम लोग लाइक हमें इतना पता नहीं होता है, एंड हम पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, थोड़ी बहुत मस्ती भी चल रही होती है, एंड विच इज़ फाइन। बट 9th से हमें सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए कि क्या करियर हमें चूज़ करना है, चाहे वो JEE हो, चाहे वो चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो और कोई फील्ड हो। तो वो हमें स्टार्ट कर देना है 9, 10 से सोचना। अगर आपका पहले से ही डिसाइडेड है, लेटेस्ट से कि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मेरे को इंजीनियरिंग ही करना है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर डिसाइड कर लिया है कि आपको मेडिकल ही करना है, बहुत अच्छी बात है। या कुछ और, लेटेस्ट से यू हैव डिसाइडेड कि यू वांट टू बिकम अ CA एंड आपको लाइक कॉमर्स ऑप्ट करना है, वेल एंड गुड। अगर नहीं डिसाइड किया है तो अब 9th 10th में डिसाइड करना आप स्टार्ट कर दें। तो सिंस वी आर डिस्कसिंग ओनली इंजीनियरिंग मेडिकल, तो मैं थोड़ा सा इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स 9th एंड 10th में हैं, दे कैन लाइक डिसाइड। अगेन, जहाँ तक कंपटीशन की बात है, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, कंपटीशन दोनों में बहुत ज़्यादा है, दोनों में सिमिलर है, कंपटीशन इज़ वेरी टफ। तो वो तो दोनों में है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कौन सा आसान है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों में ही कंपटीशन है। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात करें, तो JEE एंड नीट पे अगर कंपेयर करें हम, तो नीट का एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मीडियम है। JEE एडवांस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट अगेन आई रिपीट कि कंपटीशन दोनों में सिमिलर ही होगा। डिफ़िकल्टी लेवल वेरी करता है, बट कंपटीशन जो है दोनों में ही सिमिलर होगा। बहुत स्टूडेंट्स देते हैं बोथ द एग्ज़ाम्स, चाहे वो JEE हो, चाहे वो नीट हो। अगर आप JEE की बात करें, तो क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ है, तो लाइक आपको अपना लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपको हम अगर नीट की बात करें, तो नीट में एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल जो है दैट इज़ नॉट वेरी हाई, बट वहाँ पे स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो गई एग्ज़ाम की बात। तो प्रिपरेशन तो दोनों का बहुत रिगरस रहेगा। अगर हम एग्ज़ाम के बाद की बात करें, कॉलेज में जाने के बाद, तो कॉलेज में जाने के बाद आई विल से कि अगर आप मेडिकल चूज़ करते हैं, तो कॉलेज में जाने के बाद भी लाइफ इज़ वेरी टफ। इंजीनियरिंग में वी कैन से कि लाइफ उतनी टफ नहीं होती है कॉलेज में। ऑफ कोर्स जो मेहनत करते हैं, वो इंजीनियरिंग में भी बहुत मेहनत करते हैं, बिजी रहते हैं, बट इन जनरल मेडिकल में लाइक वो स्कोप नहीं होता है, मेहनत नहीं करने का स्कोप नहीं होता, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो लाइक 2 साल जो प्रिपरेशन है, वो तो मुझे लगता है सिमिलर है JEE नीट की। लेकिन एग्जाम के बाद, नीट या JEE क्रैक करने के बाद, कॉलेज लाइफ जो है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, रिगरस होती है। मेडिकल में, इंजीनियरिंग में उतनी नहीं होती है। जहाँ तक करियर ऑप्शंस की बात है, मेडिकल अगर आप करते हैं तो मोस्ट लाइकली लाइक मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आप डॉक्टर ही बनते हैं। इंजीनियरिंग अगर आप करते हैं, तो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि लाइक बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं आगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लाइक इंजीनियरिंग डिग्री लेते हैं, देन उसके बाद कोर में कंटिन्यू करते हैं। कोर का मतलब है कि जिस जिस फील्ड में उन्होंने इंजीनियरिंग की है, जिस ब्रांच में की है, उसी में कंटिन्यू करते हैं, एंड बहुत बार चेंज भी कर लेते हैं। तो इंजीनियर्स जो हैं, आई मीन
बहुत बार दे डू एन MBA एंड मूव इनटू अ मैनेजमेंट रोल, या फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर लेते हैं। बहुत इंजीनियर्स के लिए करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। मेडिकल में क्या होता है कि मोस्टली जो है वो डॉक्टर ही बनते हैं। जहाँ तक स्टेबिलिटी की बात है, आई विल से कि ज़्यादा चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी ऑब्वियसली मेडिकल में होता है। मेडिकल में एक करियर ऑप्शन डिफाइंड होता है। एंड अगर आप इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मनी मेकिंग, तो मेडिकल में इट्स फॉर श्योर होता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो अच्छे पैसे बना लेते हैं। इंजीनियरिंग में अगेन आई मीन बहुत बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, वेरी करता है। कुछ लोग एक एवरेज जॉब करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी जॉब करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी बना लेते हैं। सो इन शॉर्ट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू गाइस के मेडिकल इंजीनियरिंग को किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं जब आप 9th-10th क्लास में हो। इसके अलावा आप क्या चूज करेंगे वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको बायोलॉजी और मैथमेटिक्स कितना ज़्यादा पसंद है। पसंद के साथ साथ आपके उसमें आपका परफॉर्मेंस क्या रहता है, मार्क्स कैसे आते हैं, उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अगेन इट्स अगर अगर आप अनडिसाइडेड हैं, अगर आप को समझ नहीं आ रहा है, तो इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन। बट इन सारे फैक्टर्स को वेइ इन करें, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स, और टॉक टू पीपल हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड दीज एग्जाम्स एंड टेक अ डिसीजन। एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो बस स्टिक टू योर डिसीजन। डोंट थिंक यार मेडिकल लेना चाहिए था, इंजीनियरिंग लेना चाहिए था, वो सब नहीं सोचना है। जस्ट स्टिक टू योर डिसीजन। ये हो गया कि चॉइस आप इन चूज कैसे करना है। नेक्स्ट 9th-10th में, 9th-10th से ही सीरियस हो जाना है। सीरियस का सेंस ये है कि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, रटना कम कर देना है। बिकॉज बचपन से हम रटते रहते हैं फॉर एग्जाम्स, उसको थोड़ा डिक्रीज करना है। क्लास में जो बुक्स फॉलो हो रही हैं उन सबको फॉलो करना है। उसके अलावा एक रेफरेंस बुक भी आपको सॉल्व करना है। बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि कितने घंटे पढ़ना है, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो अगर हम 9th-10th की बात करें, मेरे हिसाब से स्कूल के अलावा एंड जो स्कूल में आपको होमवर्क मिलता है उन सब के अलावा मिनिमम 2 घंटे आपको रोज देना चाहिए इन 9th and 10th। तो ऑफ कोर्स अपर लिमिट कुछ भी नहीं होता इन सब में, बट मिनिमम आपको 2 घंटे निकालना चाहिए जिसमें आप उन चीज़ों को रिवाइज करें जो आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लें, रेफरेंस बुक से पढ़ लें, रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो ये इन शॉर्ट हो गया 9th and 10th का। बेसिकली पहले क्या था, पहले लोग 2 साल प्रिपेयर करते थे 11th and 12th, एंड दे यूज्ड टू क्रैक द एग्जाम्स। अब कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। आजकल देयर आर लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो 6th क्लास से तैयारी करवा रहे हैं फॉर JEE एंड नीट। तो ऑब्वियसली आई डोंट इंकरेज कि 6th क्लास से आप प्रिपेयर करें, और वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि आप 6th क्लास से प्रिपेयर कर रहे हैं। बट 9th-10th से आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। तो जिस तरीके से मैंने बताया आपको, तो आपको ये सारी चीज़ें 9th-10th से स्टार्ट कर देनी है। अब लेट्स मूव ऑन टू आपका 10th हो चुका है। अब क्या होगा, अब क्या करना है नेक्स्ट। 10th का एग्जाम खत्म हुआ। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स, यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट टू गेट एनरोल्ड इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। ऑफ कोर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल करना है, बट वेट नहीं करना है। एग्जाम खत्म हो गया, टेक 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए एंड इमीडिएटली स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सबसे पहली चीज, डिसाइड a coaching institute which you want to join. I think preferably, मेरे हिसाब से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ ऑब्वियसली, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए। उसकी रीजंस भी आई टेल यू। जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं दे आर नॉट एक्सेप्शनल। तो अब मैं उनको रेकमेंड ये करता हूँ कि वो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करें, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन ना करें या ऑनलाइन कोर्सेज से ना पढ़ें। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है, जो कि बहुत रेयर होता है, शायद वो कर सकता है ऑनलाइन कोर्स के थ्रू भी अच्छा परफॉर्म, बट इन जनरल इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो बेटर है कि आप एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे फिजिकली क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि वहाँ पे एक कंपटीशन होगा, आपका एक पीयर ग्रुप होगा, आपके साथ स्टूडेंट्स होंगे, आप एक ऑफलाइन टेस्ट देंगे, रिजल्ट आएगा, आपको देखेगा कि आपकी क्लास में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टीचर की आपके ऊपर एक नज़र होगी। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे या अगर और कोई कंप्लेन होगी तो आपको पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ऑब्वियसली आपका स्क्रीन टाइम भी बहुत कम रहेगा, आप ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन से भी बहुत ज़्यादा बचेंगे। तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज कर लीजिए
जो भी ऑफ कोर्स जो भी बेस्ट हो वो आप देखिए, वहाँ पे जहाँ पे भी आप हैं, जिस रीजन में आप हैं, देखिए कि कहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनसे बात करिए एंड टेक अ डिसीजन। इसके बाद मैं ये बोलूँगा कि प्रेफरेबली ट्राई टू स्टे with your parents. Preferably try to stay with your parents. Does anyone have a question? वो लास्ट में लेंगे शायद सलमान तो भाई। इन्होंने यू Inshallah, कैन we'll take it at the end. यू raised his कैन hand. कंटिन्यू। Fine. तो हाँ, मैं कह रहा था कि प्रेफरेबली ट्राई टू स्टे विद योर पेरेंट्स, विद योर फैमिली। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप अपने घर पे हैं तो सारी चीज़ें सॉर्टेड होती हैं। सारी चीज़ें सॉर्टेड का मतलब ये है कि आपको टाइम पे खाना मिल जाएगा, आपको खाने पीने की टेंशन नहीं लेनी है, राइट। घर पे रहेंगे तो एक प्रेशर रहता है पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि अच्छे स्टूडेंट्स जब वो हॉस्टल चले जाते हैं वो तो आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं हर एक पेरेंट, हर एक स्टूडेंट से हमेशा जब भी मिलता हूँ मैं यही कहता हूँ कि अपने जो भी वार्ड हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको अपने साथ रखें। हाँ, कभी एक्सट्रीम केस में कोई ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे अच्छा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है, उसको किसी और सिटी में जाने की ज़रूरत है, देन ठीक है, देन ऑफ कोर्स मजबूरी है। बट उस केस में भी बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि वन ऑफ द पेरेंट्स, या तो फादर या मदर, मोस्टली मदर जो है वो बच्चे के साथ चली जाती हैं, तो वो बेटर रहता है, एक सपोर्ट सिस्टम रहता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हॉस्टल में डिफ़िकल्टीज़ बहुत होती हैं, खाने का पता नहीं, खाना कैसा है, नहीं है, खाना टाइम पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो प्रेफरेबली स्टे विद योर पेरेंट्स। अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। इस दौरान जैसे आपका एग्जाम खत्म होता है 10th के बोर्ड्स का, उसके बाद देखना स्टार्ट कर दीजिए कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, क्या है एग्जाम पैटर्न। जेई का एग्जाम पैटर्न क्या, आई मीन जो भी आप चूज कर रहे हैं, चाहे जेई हो चाहे नीट हो। तो ब्रीफली मैं बता देता हूँ, जैसे नीट का एग्जाम जो होता है, ऑब्वियसली आजकल जो है 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम हो रहा है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, 180 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, 720 मार्क्स का पेपर होता है। डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो मीडियम होता है। इनफैक्ट आजकल जो है ऑलमोस्ट हर साल, आई मीन लास्ट 2-3 साल से हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 720 आ रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पेपर जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। स्पीड एंड एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज इतने हाई कट ऑफ्स चाहते हैं, इतने हाई मार्क्स चाहते हैं, तो आपका स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्यूरेसी बहुत होनी चाहिए। अगर हम जेई की बात करें तो जेई में 2 एग्जाम्स होते हैं, जेई मेन, जेई एडवांस्ड। जेई मेन जो एग्ज़ाम होता है वो उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होता है, जेई एडवांस का जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जेई मेन का भी डिफिकल्टी लेवल नीट से ज़्यादा ही होता है। जेई मेन आपको पहले देना पड़ता है, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तभी आप जेई एडवांस्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। जेई एडवांस से आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलता है, और जेई मेन से आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड बाकी कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। जेई मेन जो है वो साल में आजकल 2 बार हो रहा है, जनवरी में और अप्रैल में। तो इस साल वाला जनवरी वाला एग्जाम हो चुका है, अगला जो है वो अप्रैल में होगा। जेई एडवांस जो है यूजुअली मई में होता है। अगेन जेई मेन और जेई एडवांस की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्योंकि डिफिकल्ट होते हैं, तो आपको लेवल अप बहुत करना पड़ता है ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन। आपको टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझना पड़ेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अच्छी अच्छी बुक्स से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे नीट है, नीट में लाइक उतना हाई नहीं जाना पड़ता है, लेवल अप उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, बट स्पीड एक्यूरेसी पे ध्यान देना होता है। जेई एडवांस्ड में मान लेते हैं कि किसी ने अगर 1-2 टॉपिक्स छोड़ दिए तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, जितना आपने किया है लेटर से वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, ताकि उसके क्वेश्चंस सारे के सारे आप सॉल्व करें। तो ये ब्रीफली था आपका एग्जाम पैटर्न। इसके अलावा प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, आई मीन जो आप 2 साल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत स्टूडेंट्स फेस करते हैं, मैंने भी फेस किया था। हमें ये लगता है कि हम ये क्रैक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमने ऐसा सुना होता है हर जगह कि एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जेई एंड नीट जो है ये बहुत ज़्यादा लाइक डिफिकल्ट एग्ज़ाम है, ये हर एक बंदे क्रैक नहीं कर सकते हैं। मतलब इट्स वेरी कॉमन, एंड ये सुनते सुनते ना माइंड में बैठ जाता है कि हम क्यों क्रैक, हम भी नहीं क्रैक कर पाएंगे, हम भी इतने इंटेलिजेंट तो हैं नहीं। एंड इट्स वेरी कॉमन, ये मेरे साथ भी हुआ, एंड जितने भी दोस्तों से मैं मिलता हूँ, जितने भी स्टूडेंट से मिलता हूँ, सबका यही रहता है कि ये कोई हाई लेवल एग्जाम है, ये हम कहाँ क्रैक कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको माइंड से कंप्लीटली निकाल देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई वॉन्ट टू एश्योर यू कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इंटेलिजेंस, एक होता है हार्ड वर्क। इंटेलिजेंस एक बेसिक मिनिमम चाहिए, आई एग्री, बट मोस्टली वो सारे स्टूडेंट्स के अंदर वो बेसिक मिनिमम इंटेलिजेंस लेवल होता है। उसके बाद जो ज़रूरत होता है वो हार्ड वर्क हो। तो इन सिंपल टर्म्स मैं आपसे ये कह सकता हूँ
कि ये एग्जाम्स आपकी मेहनत पे डिपेंडेंट है, आपकी हार्ड वर्क पे डिपेंडेंट है। हर एक स्टूडेंट इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकता है, हर एक स्टूडेंट क्रैक कर सकता है। आपको बस इनफ मेहनत करनी है। हाँ, ये हो सकता है कि दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट जो है उसको कॉन्सेप्ट 1 घंटे में समझ आ रहा है, दूसरे को 2 घंटे में समझ आ रहा है, बट समझ में डेफिनेटली आएगा। आपको अगर 2 घंटे में समझ नहीं आ रहा है, आप 2 घंटे और दीजिए। तो एनफ मेहनत करने पे आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। तो आई वांट टू टेल एवरी पार्टिसिपेंट के अगर ये चीज़ आपके माइंड में है कि आप क्रैक नहीं कर सकते हैं, इसको कंप्लीटली निकाल दीजिए। और अगर आपको लग भी रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी आप अज्यूम कर लीजिए, आप अज्यूम कर लीजिए, आप ये मान लीजिए कि आप क्रैक कर सकते हो। नुकसान क्या है? अज्यूम कर लो आप, राइट? आपको ये मानना है कि आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है? नुकसान इसमें कुछ भी नहीं है, इससे और ज़्यादा फायदा ही होगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट से हमेशा फायदा ही होता है। बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं तैयारी कर रहा था, जो मैंने अपने अपने स्टूडेंट्स को देखा है, अपने फ्रेंड्स को देखा है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने माइंड से निकाल दीजिए। एक बहुत ही फेमस लाइन है, फेक इट टिल यू मेक इट। ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अज्यूम कर लीजिए कि आप तो यार, आप टॉपर हो, आप तो क्रैक करोगे अपने आप, फिर आप टॉपर बन जाते हो। जब आपका माइंडसेट वैसा रहेगा, आप वैसा ही बन जाओगे, ठीक है? तो रिमेंबर, हार्ड वर्क इज द की। इंटेलिजेंस सबके पास होता है, मेहनत करनी है, एनफ मेहनत करनी है। आपके दोस्त को कोई चीज़ 2 घंटे में समझ आ रही है, आपको नहीं समझ आ रही है, कोई बात नहीं, आप उसको 2 घंटे और पढ़ो, आपको भी समझ आ जाएगी। 4 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, समझ आना ही आना है। ठीक है। आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपने माइंड में रखिए। बिलीव इन योर सेल्फ, एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलिए, एंड ये आखिरी दिन तक, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तक रहना चाहिए। ये 2 साल जो हैं, इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, बिकॉज क्योंकि टफ एग्जाम है। कभी परफॉर्मेंस अच्छा होगा, कभी परफॉर्मेंस नीचे चला जाएगा, कभी आप क्लास में अच्छा कर रहे होंगे, कभी लाइक अच्छा नहीं कर रहे होंगे। तो हाईज एंड लोज ये आएंगे, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल। डोंट एक्सपेक्ट कि फेरी टेल राइड होगी एंड हमेशा अच्छे मार्क्स आएंगे। टॉपर्स के भी नहीं आते, टॉपर्स को भी ये लगता है कि पता नहीं क्या होगा, क्रैक होगा नहीं होगा। ये नॉर्मल, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें होंगी। आपका काम है कि आप इनको टैकल कैसे करते हैं, कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा फोकस पढ़ाई पे करिए। डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रज विद एनीवन, बिकॉज क्या होता है कि पर्सनल ग्रज जब होता है तो वो माइंड में चला जाता है, वो फिर आपकी पढ़ाई को अफेक्ट करेगा। अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स सबकी होती हैं, अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ घर पे कुछ चल रहा है, आपकी लाइफ में चल रहा है, उन चीज़ों को थोड़ा लाइटली लीजिए, एटलीस्ट इस प्रेपरेशन के दौरान। बिकॉज उन सब चीज़ों से जो है बहुत ज़्यादा बंदा जब सोचता है तो पढ़ाई अफेक्ट हो जाती है। कंपटीशन इतना टफ है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये दो एनजाइटी होने लगता है, तो दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो पाएंगी। आपको एनजाइटी भी हो रहा है एंड आपको देन पढ़ाई भी करनी है, मेहनत भी करनी है, तो ये चीज़ें साथ में नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए ट्राई टू बी, क्या कह सकते हैं, एज फ्री एंड एज लाइट एज पॉसिबल। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम्स को भूल जाइए। 10th के बाद के 12th में बोर्ड एग्जाम्स होगा, उसके लिए प्रिपेयर करना है, उसको कम्प्लीटली भूल जाइए। बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में कितने भी मार्क्स आ जाएं, ऑफ कोर्स एक मिनिमम कट ऑफ तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो आई एम अज्यूमिंग के ऑब्वियसली आप कर लेंगे। बट उसके बाद आप चाहे 95 स्कोर करें, चाहे 99 स्कोर करें, आपको जेई में उसका कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है, राइट? तो इसीलिए बोर्ड एग्जाम्स पे ज़्यादा फोकस ना करें, कोशिश ना करें कि मेरे को 95 चाहिए और 99 चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो टाइम आप जेई और नीट की तैयारी में लगाएं। इट्स बेटर कि आपके बोर्ड्स में 80% मार्क्स हैं एंड आप आईआईटी क्रैक कर लें, आईआईटी से पढ़ें, ना कि आपके बोर्ड्स में है 99% एंड देन आपको कहीं प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ रहा है, राइट? मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि मान लेते हैं कि आपकी तबीयत ख़राब है एंड यू वांट टू लाइक कंसल्ट अ डॉक्टर, एंड देयर आर 2 डॉक्टर्स। एक डॉक्टर है जो कि जिसने एम्स से पढ़ाई की है, बट उसके बोर्ड्स में थे 80% मार्क्स, एंड एक दूसरा डॉक्टर है जिसने ऐसे किसी लोकल रैंडम कॉलेज से पढ़ाई की है, बट उसके बोर्ड्स में 99% मार्क्स से। तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाओगे दिखाने के लिए? एंड ऑब्वियसली लाइक एवरीवन आंसर्स के एम्स वाले के पास जाएंगे आप, ऑब्वियसली, राइट? तो कहाँ गए आपके बोर्ड वाले मार्क्स, राइट? तो मेरा यही सजेशन है। अगेन आई एम नॉट सेइंग बोर्ड्स सही चीज़ नहीं है, आप बोर्ड्स में मार्क्स लाइए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट? बेस्ट तो होगा कि आप आईआईटी में भी टॉप टॉप कर लीजिए एंड बोर्ड्स में भी टॉप कर लीजिए, दैट वुड बी बेस्ट, राइट? बट प्रायोरिटी जो है वो आपका जेई या नीट होना चाहिए। इसके बाद आई विल से के बी इन टच विद समवन हु हैज क्रैक्ड द एग्जाम। कोशिश करिए कि आसपास कोई मिल जाए
जो जिसने एग्जाम क्रैक किया हो, एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला, वो पॉजिटिव माइंडसेट वाला बंदा भी होना चाहिए जो कि आपको मोटिवेट करता रहे, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, आई रियली डिडंट नो एनीवन, मैं किसी को भी नहीं जानता था जिसने जिसने ये एग्ज़ाम, आईआईटी एग्ज़ाम क्रैक किया हो। मेरे अब्बू ने किसी से मिलवाया था एक बार, उनको कोई मिले थे, उन्होंने एक बार मिलवाया था, एंड दैट वाज जस्ट एक मीटिंग हुई थी एंड दैट्स इट। तो मैं जानता किसी को नहीं था जिससे मैं कांटेक्ट कर सकूं, बट आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे जो लोग भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो लाइक आई एम ऑल्सो इजीली एक्सेसिबल, एंड यहाँ पे और भी लोग हैं जो इजीली एक्सेसिबल हैं। तो आप मुझसे या बाकी लोगों से, इन सब से जो है आप इन सब से जो है आप टच में रह सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, टच में रह सकते हैं, मोटिवेटेड रह सकते हैं। कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, कभी कोई डाउट हुआ वो पूछ सकते हैं। तो ट्राई टू कीप इन टच विद समवन हु हैज क्रैक्ड द एग्जाम। सो आई थिंक ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखना है जब आप लाइक जैसे ही आपने 12th बोर्ड एग्जाम्स अब पास किया है एंड आप एक कोर तैयारी अब स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद आई से के मान लेते हैं कि आपने अब कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है। तो मैं कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ कि वंस यू ज्वाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड आपने कोर तैयारी एक बार स्टार्ट कर ली है, तो अब किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। जो अभी तक मैंने पॉइंट्स बताए थे वो एक जनरल पॉइंट्स थे, ऑब्वियसली, जिनका ध्यान आपको लाइक पूरी प्रेपरेशन में रखना है। सो मूविंग ऑन फ्रॉम हेयर, मान लेते हैं कि आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। अब आपकी असली तैयारी स्टार्ट हो गई है, चाहे वो जेईई की हो चाहे वो नीट की हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि क्लासेस, डू नॉट मिस अ सिंगल क्लास। जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने लोग भी क्रैक करते हैं, उन सब की खास बात ये होती है कि दे डू नॉट मिस अ सिंगल क्लास। बी रेगुलर टू द क्लास, बी ऑन टाइम, टाइम से पहले पहुंच जाया करें, एंड जो भी फैकल्टी पढ़ा रहे हैं वैल्यू डैट। जहाँ भी आप पढ़ेंगे, जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, वो जो 1 घंटे की क्लास या 1.5 घंटे की क्लास होती है उसमें फैकल्टी ने लाइक बहुत मेहनत की होती है, उसमें उसका पूरा एक्सपीरियंस होता है। तो उसको बहुत ही अच्छे से अटेंड करें। बी वेरी वेरी अटेंटिव, जो भी फैकल्टी बता रही है उसको हर एक चीज़ को लिखिए। ये मैं अपनी क्लासेस में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता हूँ कि जो भी फैकल्टी बता रही है उसको हर एक चीज़ को लिखें। क्या होता है कि जब मैं भी पढ़ता था तो क्या होता था कि जब मैं क्लास में होता था ना तो मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत आसान चीज़ है, ये हम क्यों लिखें, ये तो हमें याद रहेगा, इट्स सो सिंपल। एंड आई एम सेइंग कि ये मेरे साथ खुद हुआ है। जब 4-5 दिन हो जाते थे मुझे वही चीज़ याद ही नहीं आती थी कि यार वो था क्या एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था जो मैंने लिखा नहीं था, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम लाइक कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं, बट हम भूल जाते हैं। ह्यूमन माइंड ही ऐसा है। तो इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि ट्राई टू राइट एज मच एज पॉसिबल, हर एक चीज़ लिख दीजिए। बिकॉज अगर आप एक्स्ट्रा लिख देंगे तो कुछ नुकसान नहीं है, एक्स्ट्रा ही तो लिखा रहेगा, बट अगर आप कुछ मिस कर देंगे तो नुकसान होता है। डोंट ट्रस्ट योर माइंड। एक 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 देयर इज अ कोट ऑल्सो जो मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ, आई रियली लाइक इट, कि द फेंटेस्ट इंक इज मोर पावरफुल देन द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। इट्स अ वेरी गुड कोट। ये मैं इन जनरल भी लाइफ में यूज करता हूँ। आई राइट एवरीथिंग, तो रिमेंबर दिस, द फेंटेस्ट इंक इज स्ट्रॉन्गर देन द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। तो डोंट ट्रस्ट योर माइंड, राइट एवरीथिंग इन लाइफ ऑल्सो, ये क्लास में भी। ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियसली हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज क्लासेस आपको सारी अटेंड करनी है, कोई भी मिस नहीं करनी है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो ही आप क्लास अटेंड कर पाएंगे, एंड ऑब्वियसली घर पे मेहनत कर पाएंगे। स्टे अवे फ्रॉम टेलीविजन, स्टे अवे फ्रॉम स्मार्टफोन्स, स्टे अवे फ्रॉम लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स। जो चीज़ भी आपकी स्क्रीन टाइम को बढ़ाए उससे दूर रहे। ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर द बिगेस्ट टाइम वेस्टर्स। ये आप लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है और ये मेरे लिए भी आज भी एप्लीकेबल है, हम सबके लिए एप्लीकेबल है। आज की डेट में एवरीवन इज अफेक्टेड बाय दिस, चाहे वो ग्रोन अप्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आपके लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, हमारे लिए भी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, बिकॉज आपका भी करियर बनने जा रहा है।
तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो आपके करियर पे सवाल आ जाएगा। हमारा करियर ऑलमोस्ट बन चुका है, तो हम अगर अफेक्ट होंगे तो हम उतना भी अफेक्ट नहीं होंगे, राइट? तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं यार एक मूवी देख लेते हैं, बट तो मूवी अगर आप देख रहे हैं 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, तो उसका इफेक्ट ऐसा नहीं होता है कि बस 3 घंटे रहता है। बेसिकली क्या होता है कि आपने कोई मूवी देखी तो उसका इफेक्ट फिर वो रहता है कुछ दिनों तक, माइंड में चल रहा होता है, हाँ उस मूवी में ये हुआ, उसने उसको मारा, उसको वो मर गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए अवॉइड ऑल टुगेदर इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। कॉलेज में चले जाइए, कॉलेज के बाद जो करना है करिए। जो अच्छी चीज़ें करनी है वो करिए कॉलेज में जाने के बाद। सो तो आई वुड सजेस्ट कि स्मार्टफोन्स इन सब से बिल्कुल दूर रहिए। इसके अलावा क्लास में जैसे मैंने कहा हर चीज़ लिखिए, डाउट्स पूछिए। अगर आपको डाउट आ रहा है एकदम से क्लास में ही पूछिए। आइडियल तरीका तो ये है कि क्लास में ही आप स्टॉप करें और क्लास में ही पूछ लें। अगर क्लास में नहीं पूछ पा रहे हैं, अगर आप शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं, क्लास में नहीं पूछ पा रहे हैं, तो क्लास के बाद पूछ लीजिए, या अगले दिन क्लास से पहले पूछ लीजिए, बट पूछ लीजिए। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ये शाय होना और इंट्रोवर्ट होना जो है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसान देगा इस फेज़ में। बिकॉज मैं भी जब व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं भी बहुत ज़्यादा शाय था, बहुत इंट्रोवर्ट था। एंड मैं भी लाइक आई थिंक डाउट्स वाउट्स उतना नहीं पूछता था, जिससे मुझे लगता है बहुत नुकसान हुआ। अगर मैं डाउट्स वाउट्स पूछता तो और ज़्यादा फायदा हो सकता था। तो माई एडवाइस इज, ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी ईजी अपना नेचर चेंज करना, इट्स नॉट ईजी, बट माई एडवाइस इज कि कोशिश करिए कि इन सबको, शाइनेस और जो इंट्रोवर्ट बिहेवियर है, इन सबको भूल जाइए एंड आस्क योर डाउट्स जितना ज़्यादा हो सके फैकल्टी से, अपने पीयर्स से। उससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, करियर में आपका इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्लास, आई थिंक क्लास में, आई थिंक क्लास के पॉइंट्स तो हो गए। क्लास के बाद जब आप घर पहुंचते हैं, रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको पढ़ाया गया है। होता क्या है कि क्लास में जो 1 घंटा होता है वो थोड़ा फास्ट चला जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कॉन्सेप्ट फैकल्टी बता रही है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो समझते समझते ही जो है फैकल्टी वो अगले पॉइंट पे पहुंच गई, राइट? तो हम भी फिर अगले पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, हम उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो घर जाके आपको क्या करना है? घर जाके आपको नोट्स देखना है, नोट्स को रिवाइज करना है एंड नोट्स को कंप्लीट करना है। आप जब नोट्स को देखेंगे ना, आपको लगेगा हाँ यार ये वाला पॉइंट था जो क्लास में सर बता रहे थे, बट मैंने समझा नहीं, उसको समझिए। या ये पॉइंट था जो सर ने कुछ और बोला था, वो मैं लिख नहीं पाया, मैं लिख लेता हूँ उसको। तो उसको आपको कंप्लीट करने की जरूरत है। तो घर जाके रिवाइज करें नोट्स को एंड कंप्लीट करिए नोट्स को, एंड डू इट ऑन द सेम डे करना चाहिए आपको। बिकॉज अगले दिन आप वो थोड़ा भूल जाएंगे, बिकॉज वो आपकी अभी टेम्पररी मेमोरी में है। आपको पहले दिन पूरा याद रहेगा। अगर आपने पहले दिन रिवाइज नहीं किया, दूसरे दिन किया, 20-30% आप भूल चुके होंगे। दूसरे दिन भी नहीं किया, तीसरे दिन किया, 50-60% आप चीजें भूल चुके होंगे। तो इसलिए रिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है उसी दिन, ताकि एक बार आप रिकैप कर लें क्या पढ़ाया गया, जो चीज़ें आप क्लास में उतना समझ नहीं पाए उसको समझ लें, जो डाउट्स हैं वो अगले दिन पूछ लें, जो नोट्स में चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई उसको कंप्लीट कर लें। इसके बाद जो पढ़ाया गया उन पे क्वेश्चंस करें एंड उसी दिन क्वेश्चंस करें। ये वेट ना करें कि एक बार पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस उसी दिन करें। जब मैं व्हेन आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग, जिस दिन भी क्लास होती थी शाम को आके मैं क्वेश्चंस करता था। एंड बहुत बार ऐसा होता था कि मैं ये अज्यूम करता था कि आज पढ़ाया गया है तो मुझसे क्वेश्चंस तो कुछ बनेंगे नहीं। वो पहले अज्यूम करके चलता था कि क्वेश्चंस शायद नहीं बनेंगे, बिकॉज वैसे भी पहले आज ही पढ़ाया गया है, इट्स फाइन, इट्स ओके। बट जब क्वेश्चन बन जाता था तो बहुत अच्छा लगता था, लाइक बहुत ही खुशी महसूस होती थी, राइट? तो ये चीज़ आप जरूर ट्राई करें कि जिस दिन पढ़ाया जाए उसी दिन जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चन बन जाएगा, अगर क्वेश्चन बन जाता है आपसे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी महसूस होगी। ठीक है, हाँ, आई थिंक रिवाइज करें और अगले दिन जो भी डाउट्स हैं उसको पूछ लें। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद योर पीयर्स। सबका अपना अपना इंटेलिजेंस लेवल होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी चीज़ों को समझते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत टाइम लगता है, बट इट्स फाइन। आपको बस मेहनत करते रहना है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, डजेंट मैटर। मैं आपको बताऊंगा, व्हेन आई वाज स्टडिंग इन द कोचिंग, मेरे साथ आसपास लोग ऐसे होते थे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, दे वर वेरी इंटेलिजेंट। एंड मुझे फील होता था कि यार ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये क्वेश्चंस का भी जवाब पहले दे रहे हैं। मुझसे क्वेश्चन या तो मैं लेट से कर रहा हूँ या मुझसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। बट जब रिजल्ट आया तो ऐसा हुआ कि उनमें से बहुत सारों का सिलेक्शन नहीं हुआ।
जो मुझे लगा जो रीज़न था इसका वो ये था कि आई नेवर गेव अप, आई वॉज कंसिस्टेंट। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो बहुत ही, जो मुझे आई थिंक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए बहुत ज़रूरी है कि डू नॉट गिव अप। चाहे जैसा भी रिजल्ट हो, चाहे जैसे भी तैयारी हो, चाहे बाकी लोग कैसा भी परफॉर्म कर रहे हों, डू नॉट गिव अप। ये एग्जाम के लिए भी मैं कह रहा हूँ, लाइफ के लिए भी कह रहा हूँ, नेवर गिव अप। लगे रहिए, बी कॉन्सिस्टेंट। आपको लगेगा आपके आसपास वाले ऐसे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इट्स फाइन। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता कि आपके आसपास वाले जो अच्छा कर रहे हैं वो कब तक करेंगे अच्छा, वो इंटेलिजेंट हो सकता है, बट कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं बट आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, डेफिनेटली यू विल विन। तो डो नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, राइट? ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक बार चैप्टर्स जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाएं। नोट्स बनाना भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपना प्रोसेस बता देता हूँ। जब चैप्टर ख़त्म हो जाता था तो उसके सारे क्वेश्चंस मैं कर लेता था, एंड नोट्स सारे रिवाइज कर लेता था। जब मुझे लगता था कि अब होल्ड हो गया है इस चैप्टर पे, तब मैं उसके शॉर्ट नोट्स बना लेता था। एंड मैं यूज़ करता था A4 शीट्स। A4 शीट्स में इसलिए यूज़ करता था ताकि उसमें एडिशन डिलीशन जो है वो आसान हो। कॉपी मैं यूज़ नहीं करता था। A4 शीट्स में क्या होता है, मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट फील होता था। कभी भी कुछ ऐड करना है बीच में ऐड कर दिया, कुछ रिमूव करना है रिमूव कर दिया, नए पेजेस ऐड कर दिए, नए पेजेस आई मीन पुराने पेजेस रिमूव कर दिए। तो शॉर्ट नोट्स मेरे हिसाब से बनाना चाहिए। इट्स वेरी हेल्पफुल। जब आप एग्जाम देने वाले होते हैं तब बहुत हेल्पफुल होता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लेते हैं एंड में मॉक टेस्ट देने हैं, हर हफ्ते 2 टेस्ट 3 टेस्ट देना है, तो हर एग्जाम से पहले आपको एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। तो उस टाइम पे जो है वो शॉर्ट नोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ट्राई सिटिंग कंटिन्यूअसली फॉर अराउंड 3 आवर्स एंड स्टडिंग। अगेन इसमें दो थ्योरीज हैं। ये भी ज़रूरी है कि आप रेस्ट लें, ब्रेक्स लें, बट ये भी ज़रूरी है कि क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो 3 घंटे का है, तो ये भी ज़रूरी है कि आप 3 घंटे कंटिन्यूअसली एक जगह पे बैठ पाएँ। ऐसा ना हो कि आपको आदत ही नहीं है 3 घंटे बैठने की और एग्ज़ाम के दौरान आप 3 घंटे बैठ ही नहीं पा रहे हैं। बिकॉज जो जेई का एग्ज़ाम होता है, जेई मेन का, वो 3 घंटे का होता है। जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे 20 मिनट का होता है। जो जेई एडवांस का होता है वो 2 एग्ज़ाम होते हैं 3 घंटे के एक दिन में। तो एक दिन में आपको कंटिन्यूअसली 3 3 घंटे 2 बार बैठना है, विच इज़ लाइक 6 आवर्स बैठना है। तो इसकी भी आदत बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप 3 घंटे बैठ के लगातार पढ़ रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो आई थिंक ये थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास क्लास के बाद जो 2 साल की तैयारी है उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो इसमें कुछ और पॉइंट्स आई टेल यू। जब भी आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, डू नॉट यूज़ अ बेड फॉर स्टडिंग, यूज़ अ टेबल एंड चेयर ऑलवेज। बिकॉज बेड पे क्या होता है, वो एक कंफर्ट आ जाता है ना, फिर आपको नींद आ जाती है। मतलब ये इट्स वेरी नॉर्मली मेरे साथ भी होता है जब मैं कुछ काम वाम कर रहा होता हूँ। तो टेबल चेयर पे जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो बहुत लाइक प्रोडक्टिवली होता है। जब बेड पे काम कर रहे होते हैं तो बस बेड पे बंदा फिर सो ही जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो चेयर एंड टेबल ही यूज़ करें। इसके अलावा जब भी आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, यूज़ अ टाइमर। टाइमर बहुत हेल्पफुल होता है। चाहे आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे मान लेते हैं कि आपको बस लेटेस्ट से 20 मिनट प्रैक्टिस करना है, 20 मिनट ही आपको लाइक कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो 20 मिनट का लगाए टाइमर। मान लेते हैं कि आपको बस 10 क्वेश्चन करने हैं, तो 10 क्वेश्चन के लिए आप 10 मिनट या 15 मिनट का टाइमर लगा लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस करने हैं टाइमर लगाइए। टाइमर से क्या होता है कि एक वो एग्जाम वाला माइंडसेट बनता है, राइट? एक प्रैक्टिस हो जाती है, एक अर्जेंसी वाला ना वो फील आता है, एंड यू गेट मोर डन इन लेस टाइम। तो इसलिए टाइमर बहुत ज़रूरी है। इसको प्रैक्टिस करें। और जैसे मैंने बताया आपको कि 9th 10th में 2 घंटे काफ़ी होता है अदर देन स्कूल एंड क्या बोलते हैं, स्कूल होमवर्क एटसेट्रा। बट 11th 12th में इस चीज़ को आपको कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा। तो 11th 12th में यू विल हैव टू एटलीस्ट स्टडी फॉर 10 आवर्स। मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा दिन है जिस दिन आपको स्कूल भी नहीं जाना है और कोचिंग भी नहीं जाना है, तो उस दिन मेरे हिसाब से मिनिमम 10 आवर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगेन दिस इज द मिनिमम, अपर लिमिट कुछ भी नहीं होता इन सब में। जितनी मेहनत करनी है आपको करिए। जितना आप इंक्रीज कर सकते हैं अपनी रैंक को, अपने परफॉर्मेंस को, उतना आपको इंक्रीज करना चाहिए, उतना नंबर ऑफ आवर्स देना चाहिए आपको। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत हेल्पफुल होती है वो ये होती है कि आप एक पीयर सर्कल बना सकते हैं, एक स्टडी सर्कल टाइप बना सकते हैं अपने एक दोस्तों का।
तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्वेश्चंस आप लोग डिस्कस कर सकते हैं आपस में, एक दूसरे के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, एक दूसरे को मोटिवेटेड रख सकते हैं। अगेन मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो वैसे होने चाहिए जो अच्छे स्टूडेंट्स हों, राइट, जो आपकी हेल्प भी कर सकें, ऐसा आपको मोटिवेटेड भी रखें, आपकी हेल्प भी कर सकें। जब मैं पढ़ा था तो मेरे साथ भी ऐसे मेरे दोस्त थे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसके अलावा हम स्कूल में क्या करते हैं, हम स्कूल में चीज़ों को रट लेते हैं, तो उसको जैसे मैंने पहले बोला था कि 9th-10th में उसको थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो 11th-12th में उसको और कम करना पड़ेगा। तो यूजुअली मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए, बिकॉज ये एग्जाम्स ऐसे हैं कि अगर आप समझेंगे नहीं तो एग्जाम को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। स्पेशली जो हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली जेई में, जेई एडवांस में, उन सबको क्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है अगर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, आप रटेंगे। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। बट एक और चीज़ मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि मान लेते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ ही नहीं आ रही, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद भी समझ नहीं आ रही है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि फिर ठीक है, एक्सट्रीम केस में आप रट लीजिए चीज़ों को एज अ लास्ट रिजॉर्ट। और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर आप किसी चीज़ को रट लेते हैं एज अ लास्ट रिजॉर्ट, तो विद टाइम क्या होता है कि विद टाइम फिर वो चीज़ें भी आपको समझ आने लग जाती हैं, ठीक है। तो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि चीज़ों को रटिए, आई एम सेइंग कि चीज़ों को समझिए, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अगर समझ नहीं आता है तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट रट सकते हैं, हो सकता है विद टाइम वो आपको आगे समझ में आ जाए। पढ़ाई को इस तरीके से 11th-12th में करिए, बिकॉज आई मीन ये आपके करियर का सवाल है। पहले हम पढ़ते हैं 8th तक या 9th-10th तक मार्क्स को लेकर, कि पढ़ना है तो हमारे मार्क्स आएंगे। अभी इट्स नॉट मोर अबाउट मार्क्स, इट्स मोर अबाउट योर करियर। तो 11th-12th जो है वो आपका करियर सॉर्ट ऑफ डिसाइड करता है। तो इसीलिए अभी जो आपको पढ़ाई करनी है वो इस चीज़ को माइंड में रख के करनी है। रिवीजन रिपीटिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन रिपीटिशन पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को रिपीट करेंगे, उतना ये आपको हेल्प करेगा, उतनी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, उतना आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो रिवीजन रिपीटिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली बिकॉज 2 साल का सिलेबस आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। वेरी कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम अब 12th में आ गए हैं बट 11th का हमें कुछ याद नहीं है, हम भूल गए हैं, अब क्या किया जाए। तो इसीलिए रिवीजन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसका आपको डे 1 से ध्यान रखना है। क्वेश्चंस आप ये कर सकते हैं कि जब चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, हर कुछ दिनों पे उनको आप रिवाइज कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब आपने स्टार्ट किया तो आप 0 पे हैं, मान लेते हैं कि 1 महीना गुजर गया है एंड आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो अब आपको इन 3 चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना है। मान लेते हैं कि 4 महीने गुजर गए हैं एंड आपके, मान लेते हैं कि लेटेस्ट से कि 20 चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको इनको 20 चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना है कॉन्सिस्टेंटली। तो यूजुअली मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि एवरी वीक और एवरी 15 डेज एक दिन आपको निकालना पड़ेगा जिसमें आपको पीछे का पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा, आगे आगे आपको फिर से पढ़ना पड़ जाएगा। इसमें आपके लिए मैं एक और पॉइंट बताता हूँ कि जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट करिए, उसको बीच में ना छोड़िए, उसको पूरा कंप्लीट करिए। बिकॉज क्या होता है, कोई चैप्टर आपने स्टार्ट किया, आपने उसको बीच में छोड़ दिया, अब 2-3 महीने बाद उसको वापस से रिज्यूम करना है तो वो रिज्यूम नहीं हो पाता है, वो बीच से रिज्यूम नहीं हो पाता है, आपको उसको फिर से पीछे से या शुरू से करना पड़ता है। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आजकल भी इसको फेस करता हूँ। जब भी मैं कोई नॉवेल स्टार्ट कर मैंने कोई नॉवेल स्टार्ट किया पढ़ना, उसके पहले 50 पेज पढ़ लिए एंड फिर वो छूट गया, भूल गया मैं, 1-2 महीने हो गए, अब मुझे वापस से उस नॉवेल को रिज्यूम करना है। तो वो कभी हो नहीं पाता है कि वो 50 पेजेस जो मैंने पढ़े हुए हैं उसके बाद से रिज्यूम किया जाए। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, वो बंदा भूल जाता है, तो थोड़ा पीछे से करना पड़ता है या फिर शुरुआत से करना पड़ता है। तो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं उसको पूरा कंप्लीट करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करें। जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, उससे आपको एक एग्जाम के बारे में पता लगेगा एंड एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। आई थिंक लास्ट आई टेक प्रोबेबली लास्ट 5 to 7 मिनट्स मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम के टिप्स देता हूँ एंड देन प्रॉब्ली विल मूव ऑन टू क्वेश्चन आंसर्स। तो एग्जाम के दौरान क्या करना चाहिए,
तो ये प्रिपरेशन का जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो एग्जाम भी है। एग्जाम आपको शुरुआत से ही देना है, एग्जाम कभी भी मिस नहीं करना है, चाहे कैसी भी प्रिपरेशन हो। नेवर एवर मिस अ एग्जाम, मिस एन एग्जाम। एग्जाम से क्या होता है, जब आप वो 3 घंटे बैठते हैं तो एक तो वो आपको आदत होती है 3 घंटे बैठने की। आपको आपको समझ आता है कि क्या चीज़ें आपको आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती हैं, कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कौन से चैप्टर्स आपको आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको चीज़ें आती हैं बट फिर भी एग्जाम स्ट्रेटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोग ऐसा हो सकता है कि दो लोग हों जिनको एग्जैक्टली सेम लेवल हो प्रिपरेशन का किसी चैप्टर का, बट एग्जाम टेम्परामेंट डिफरेंट हो और मार्क्स डिफरेंट आ जाएं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम्स दें। एग्जाम्स में कुछ हम पॉइंट्स ध्यान रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं आप एग्जाम दे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप शुरुआत में ना करें, ऐसे क्वेश्चंस को एंड में करें। मान लिया कि आपने कोई क्वेश्चन देखा, देखते ही लगा कि बहुत टाइम लेगा, 3-4 मिनट ले लेगा ये क्वेश्चन, तो उसको वहां पे ना करें, उसको एंड में करें। और एक मार्किंग स्ट्रैटेजी रखें। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपने एग्जाम देना स्टार्ट किया, तो पहला क्वेश्चन आपका बन गया लेटेस्ट से, तो उसको आपने ओएमआर में मार्क कर दिया और उसको टिक कर दिया। एक बार ओएमआर में मार्क कर दिया, टिक कर दिया, अब उस क्वेश्चन को बाहर वापस से दोबारा नहीं देखना है, बिकॉज एक बार मार्क हो गया तो अब चेंज नहीं हो सकता। ये मैं नीट एग्जाम की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पेपर मोड होता है, तो वहाँ पे अब वो चेंज नहीं हो सकता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स ने एग्जाम के दौरान कोई ऑप्शन मार्क कर दिया है, उसको वापस से चेक किया और वो उसने रियलाइज किया कि गलत मार्क किया है, जिससे उसको टेंशन हो गई और पूरा पेपर खराब हो गया। इसीलिए एक बार मार्क हो गया ओएमआर में तो अब हमें नहीं देखना, चाहे वो गलत मार्क हुआ सही मार्क हुआ, हमें उस क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, वो एग्जाम के बाद देखना है। बिकॉज अगर मान लेते हैं गलत हुआ होगा और आपने देख लिया, तो फिर आपका पूरा एग्जाम डिस्टर्ब हो सकता है। एंड उसको आपने अपने क्वेश्चन पेपर पे भी टिक मार्क कर दिया, टिक मार्क करते ही उसको आप भूल गए, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। मान लेते हैं कि वो क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे थे, ठीक है, और आपको लगा कि क्वेश्चन बन सकता है बट ये बहुत लंबा है, तो आपने उसको सर्कल कर दिया। मैं ये मार्किंग्स बता रहा हूँ, मार्किंग से क्या होता है कि पेपर थोड़ा एफिशिएंट हो जाता है। तो टिक मार्क अपने हिसाब से आप बना ले। मेरे हिसाब से मैं क्या करता था, मैं टिक करता था। टिक का मतलब है कि इस क्वेश्चन को वापस देखना ही नहीं है। सर्कल करता था, सर्कल का मतलब है कि इसको एंड में करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्किंग्स बना सकते हैं जो कि आपको एग्जाम्स में हेल्प कर सकता है। कोई क्वेश्चन ऐसा है एंड, मान लिया एंड में टाइम बचा हुआ है, कोई क्वेश्चन ऐसा जो नहीं बन रहा है, उसको ऑप्शंस के थ्रू देखें। ऑप्शन से आप कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक या दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो उसमें फिर आप कोशिश, आई मीन थोड़ा तुक्का भी मार सकते हैं, आई मीन गेस भी मार सकते हैं। अगर आपने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, दो ही ऑप्शंस बचे हुए हैं, तो यू कैन डू अ गेस। नीट के एग्जाम में स्पेशली ट्राई टू डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, बिकॉज नीट का एग्जाम जो होता है उसमें लाइक बहुत हाई कट ऑफ जाते हैं। पेपर जो है वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, तो उसमें आपको कोशिश ये करनी है कि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप कर पाए वो आप करें। बहुत बार ऐसा होता है कि दो ऑप्शंस आपको सही लग रहे होते हैं और इनफैक्ट सही भी होते हैं, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, जो सेफर ऑप्शन है उसको आप मार्क करें। इजी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी ना छोड़ें। इनफैक्ट अगर ऑप्शन है आपके पास, इजी क्वेश्चन भी है टफ क्वेश्चन भी है, तो इजी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें। बिकॉज चाहे आप इजी क्वेश्चन करें चाहे आप टफ क्वेश्चन करें, दोनों दोनों के मार्क्स सेम होंगे, दोनों 4 मार्क्स के होंगे, तो कोशिश करें कि इजी क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व करें। तो आई गेस आई थिंक ये सारे पॉइंट्स थे जो शॉर्ट में मैंने आपको एग्जाम्स के लिए बताया। अगेन आई मीन ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो जो आपको विद टाइम भी समझ आएंगे, जब विद टाइम आप तैयारी करेंगे तो भी आपको समझ आएंगे। तो जो एग्जाम्स वाले पॉइंट्स हैं वो मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया, मैंने ऊपर ऊपर से सोचा जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। तो आई गेस आई हैव ट्राइड टू कवर मोस्ट पॉइंट्स। जो जो वैसे तो ये बहुत वास्ट है, अगर हम इसमें बातें करें तो और भी बहुत सारी बातें हैं, बट इन शॉर्ट जितना मुझे लगा कि मोस्ट हेल्पफुल पॉइंट्स हैं वो आई थिंक आई हैव कवर्ड। जजाकल्ला खैर सलमान भाई, बहुत ही ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, मतलब कि नज़रें हटी नहीं मेरी, मैं तो सुन ही रहा हूँ शुरुआत से आपको। थैंक और यू, बहुत थैंक से आपने जो बढ़िया बढ़िया पॉइंट बोले हैं माशाल्लाह, जो पॉजिटिव माइंडसेट, नेवर गिव अप, जहाँ से आपने स्टार्ट किया। बाकी जो आपका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जो लगा आपने दिया, एम से किसी ने अगर जो यू। है अगर किया हुआ है बट उसके परसेंटेज कम थी, वाला एग्जाम्पल बड़ा आपका यूनिक बिल्कुल। था।
तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमारे स्टूडेंट्स ने पूछे भी हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान। तो एक सवाल ये पूछा है कि भाई मैनेजमेंट से रिलेटेड, लाइक हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड एट द सेम टाइम नीट एग्जाम और अदर एग्जाम, राइट? तो उस पर आप थोड़ा सा एडवाइस दे दें। ठीक है। सो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि नीट का सिलेबस, जेई का सिलेबस, बोर्ड्स का सिलेबस, ये सारे सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तैयारी डिफरेंटली करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तैयारी सिमिलर ही होती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको स्टार्ट बेसिक लेवल से ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली हाई लेवल पे जंप करते हैं। तो स्टार्ट आप बेसिक लेवल से करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को आप बेसिक लेवल से क्लियर करते हैं। जहां भी आप पढ़ेंगे वहां पे आपको बेसिक लेवल से ही पढ़ाया जाएगा। और जो बोर्ड्स हैं उसमें भी आपको बेसिक चीजें ही रिक्वायर्ड होती हैं। तो बोर्ड्स वाली चीजें भी जो है कंपटीशन की तैयारी के दौरान कवर हो जाती हैं। जो एक चीज बस बच जाती है वो ये है कि आंसर राइटिंग के किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से सब्जेक्टिव आंसर्स को करना है, वो चीजें बच जाती हैं। तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अगर आपकी जेई या नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तो वो जो पोर्शन है लिखने वाला वो बहुत आसान होता है। वो आप एग्जाम से कुछ टाइम पहले कर सकते हैं, 15-20 दिन पहले वो आप कर सकते हैं। तो यूजुअली अगर आपकी प्रिपरेशन जेई नीट की बहुत अच्छी है तो वैसे बच्चे जो हैं बोर्ड्स में भी अच्छा ही करते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स दोनों जगह एग्जैक्टली सेम है। इनफैक्ट अगर आपकी जेई नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आपको बोर्ड्स तो एक केक वॉक लगेगा, बोर्ड्स आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा। 15-20 दिन पहले बस आप थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड्स के आप देख लें, प्रैक्टिस कर लें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लें, डेफिनेशंस को लिखना, किसी अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन है उसको स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करना है, वो सब चीज़ें प्रैक्टिस कर लें तो आराम से मैनेज हो जाएगा। तो फोकस रहना चाहिए आपका जेई नीट अच्छे से। इफ यू आर डूइंग वेल इन जेई नीट प्रिपरेशन, डेफिनेटली यू विल डू वेल इन बोर्ड्स एज वेल। एक और सवाल ये है कि हाउ टू नॉट गेट डीमोटिवेटेड व्हाइल स्टडिंग एंड क्लियर ऑल द डिस्ट्रैक्शन। इस पे शायद आपने थोड़ा कवर भी किया है, लेकिन हाँ, हाँ इन केस यू वांट टू ऐड समथिंग। हाँ। तो ये दिस इज अ वेरी वेरी गुड एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन कि डीमोटिवेटेड कैसे ना हो। सबसे पहली चीज़ है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरा एडवाइस ये है कि जैसे मैंने बोला कि पहले तो अज्यूम कर लें कि आप क्रैक कर सकते हैं, ये एक ठान लें, मान लें कि मुझसे हो जाएगा, मैं क्रैक कर लूँगा एग्ज़ाम। उसके बाद कंपेयर नहीं करें किसी और से कि बाकी लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करें, मेहनत करते रहें। अगर थोड़ा डिमोटिवेट हो भी रहे हैं, मेहनत को बिल्कुल ना छोड़ें, कंटिन्यू करें मेहनत, डू नॉट गिव अप। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं, फिर तैयारी छोड़ देते हैं, वो 1-2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, फिर वापस आते हैं कि 1 महीने से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं बहुत डिमोटिवेटेड हूँ। तो जब सी क्या होता है, जैसे सबके साथ होता है, अगर लाइफ में कुछ लोज हैं या कुछ थोड़ा डाउन फील हो रहा है तो आपके 2-3 घंटे बर्बाद होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। वो दिन आपका बर्बाद होना चाहिए। अगले दिन स्टार्ट अफ्रेश, स्टार्ट लाइक विद न्यू एनर्जी, रिफ्रेश योर सेल्फ। वो उससे ज्यादा अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो डिमोटिवेशन ये नॉर्मल है, ये होता है, ये एग्जाम के बाद थोड़ा बहुत रहेगा, बट आपको वापस आना है। यू हैव टू लाइक फाइट बैक, यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन। मतलब ना वो उसे एक दिन से ज्यादा बर्बाद नहीं होना चाहिए। एंड तक अगर आप मेहनत करते रहेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, यू विल बी सक्सेसफुल। मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। वहीं अगर आप डिमोटिवेट होकर छोड़ देंगे तो बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो मेरा एडवाइस ये है कि लाइक कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, एग्जाम्स ना छोड़ें, डिमोटिवेशन की वजह से पढ़ाई ना छोड़ें, करते रहें। प्लस ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स मैंने पहले भी बोले थे, तो उन सब पे भी फोकस करें। बिल्कुल। एक सवाल ये है कि माई मार्क्स आर नॉट कांस्टेंट इन द मॉक टेस्ट इवन दो आई एम रिवाइजिंग एंड एनालाइजिंग द टेस्ट। तो इसमें सलमान भाई आप क्या सोचते हैं, कहाँ पे ये गलती कर रहे हैं? हाँ 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 हाँ। हाँ देखिए, देखिए सबसे पहली चीज़ देखिए, मॉक टेस्ट में मार्क्स जो हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर्स अच्छे हैं, कुछ वीक हैं, तो उसकी वजह से होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर का भी लेवल जो है ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसकी वजह से भी मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए आपको ना, आई मीन जिस पेपर में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं ना, उसको एनालाइज कर लेना चाहिए खुद से ही, या किसी फैकल्टी के साथ बैठकर। अगर आपको कोई फैकल्टी है, कोई टीचर है, उनका बैठ जाएं आप और एनालाइज कर लें कि जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं और जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं। अब मल्टीपल रीजन हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपने प्रिपेयर ही नहीं किया था वो चैप्टर, तो फिर तो आपको प्रिपेयर करना है वो चैप्टर।
ऐसा हो सकता है कि टफ क्वेश्चन था, तो ठीक है, फिर आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी है। ऐसा हो सकता है कि सिली मिस्टेक थी, तो सिली मिस्टेक में फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा, आगे से आपको लाइक थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। सिली मिस्टेक भी जो है प्रैक्टिस से चली जाती हैं। और अगेन ऐसा हो सकता है कि लाइक थोड़े चैप्टर्स वीक हैं, तो उसकी वजह से भी क्वेश्चंस आपने नहीं किए और मार्क्स कम हो गए। तो इनमें से एनालाइज कर लीजिए एंड फाइंड आउट द रीज़न एंड उस पर वर्क कर लीजिए। अगर चैप्टर पढ़ाई नहीं है तो उसको पढ़िए, फिर एग्जाम दीजिए। अगर वीक है तो वीक चैप्टर्स को सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले थ्योरी को पूरा रिवाइज कर लें एंड देन प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, सिली मिस्टेक्स खत्म होंगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। तो इस हिसाब से ना टेक एक्शन। ओके सलमान, जजाकल्ला। एक और सवाल ये है कि आई एम नॉट एबल टू चूज माई स्ट्रीम, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, आई एम कंफ्यूज बिटवीन, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ओके, तो आई थिंक वो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रीम चूज करने के क्राइटेरियाज, जिसमें से एक मैंने बताया था कि मेडिकल, एक तो हो गया एग्जाम, जेई और नीट। जेई का डिफिकल्टी लेवल जो है वो बहुत हाई होता है, नीट का लाइक मीडियम होता है, दैट इज़ वन। प्रिपरेशन दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत ही रिगरस है, कंपटीशन बहुत ही टफ है, तो वो दोनों में सिमिलर है। पोस्ट दी एग्जाम, आई मीन जब आप कॉलेज में जाते हैं, तो मेडिकल में जो है लाइफ थोड़ी टफ है। इंजीनियरिंग में लाइफ जो है आई गेस आई मीन उतनी टफ नहीं है। बेसिकली इंजीनियरिंग में ये कह सकते हैं कि वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी लाइफ को कैसे बनाना चाहते हैं। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं आप एंजॉय कर सकते हैं, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं आप मेहनत कर सकते हैं। बट मेडिकल में जो है लाइफ बहुत टफ ही रहती है ड्यूरिंग कॉलेज, थोड़ा स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जहाँ तक करियर स्टेबिलिटी की बात है, मेडिकल में करियर स्टेबिलिटी ज़्यादा है। मोस्टली क्या होता है कि जो भी आई मीन मेडिकल लेते हैं, एमबीबीएस करते हैं, वो डॉक्टर ही बनते हैं। इंजीनियरिंग जो करते हैं वो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो करियर स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा ऑब्वियसली डॉक्टर में है। इंजीनियरिंग में क्या है कि करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, वो एक वाइड स्पेक्ट्रम है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर अगर हम ऑप्शंस कितने ओपन रहते हैं उसकी बात करें, तो इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं। मेडिकल करने के बाद ऐसा नहीं होगा। मेडिकल करने के बाद अगर कोई सोचे कि मेरे को एमबीए करना है, तो लोग बोलेंगे यार क्या बेवकूफ़ है एमबीए। तो मेडिकल के बाद जो ऑप्शंस कम रहते हैं। जहाँ तक आई थिंक पैसे कमाने की बात है, तो मेडिकल में इट्स लाइक के डेफिनेटली आप अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। इंजीनियरिंग में अगेन वाइड स्पेक्ट्रम है, वो बहुत बड़ा रेंज है, आप बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, आप एवरेज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगेन बायो एंड मैथमेटिक्स पे भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है, आपका इंटरेस्ट किस में है। बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में है। बायोलॉजी में चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में आपका वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, तो आप मैथ्स में अच्छा कर पाएंगे। तो आप ये भी देखें कि इंटरेस्ट किस में है, प्लस इसके अलावा ये भी देखें कि आप परफॉर्म किस में अच्छा कर रहे हैं, इंटरेस्ट के अलावा, कि आप मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर बायोलॉजी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स you'll हैव टू डिसाइड। और इंजीनियरिंग में एक और चीज़ है कि इंजीनियरिंग में लाइक बहुत जल्दी आप बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका बैकग्राउंड जो है फाइनेंशियली बहुत वीक होता है, एंड लाइक दे नीड टू अर्न मनी एज सुन एज पॉसिबल इन देयर लाइफ टू सपोर्ट देयर फैमिली और अदर थिंग्स। तो ये भी एक फैक्टर होता है, तो अगर इस फैक्टर को हम ध्यान में रखें, तो इंजीनियरिंग करियर इज लाइक मोर फेवरेबल, बिकॉज इंजीनियरिंग में आप जल्दी एक जॉब में आ सकते हैं। जल्दी का मतलब है कि ट्वेल्थ के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ट्वेल्थ के बाद आप जल्दी एक जॉब में आ सकते हैं। मेडिकल में क्या होता है कि अच्छा खासा टाइम लग जाता है, जॉब करने तक बहुत टाइम लग जाता है। तो ये भी एक फैक्टर होता है। प्लस अगेन डिस्कस विद योर पेरेंट्स, डिस्कस विद योर फैमिली, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड जो आपके सीनियर्स हैं, एंड टेक अ डिसीजन। या थैंक यू सलमान भाई। एक सवाल है सेल्फ स्टडी से रिलेटेड फॉर नीट, तो ओके, कैसा है, सेल्फ स्टडी करना चाहिए या ये किस तरीके आपने से क्या करना चाहिए? नीट नीट के लिए? नीट के लिए, राइट? हाँ हाँ, तो देखिए सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। इनफैक्ट ये है कि देखिए आप कोचिंग जाएंगे, आप क्लासेस जाएंगे, आप स्कूल जाएंगे, तो वो सब भी जो है एक माइनर पोर्शन ही, आई मीन वो सब जो है वो आपको थोड़ा बहुत ही हेल्प करेगा।
मेनली आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है। तो मान लेते हैं कोई क्लास है, क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं, मान लेते हैं, है ना। तो वहाँ पे फैकल्टी जो पढ़ा रही है वो सबके लिए बराबर है। कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, कोई अच्छा नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे किसका रोल आ गया? वहाँ पे सेल्फ स्टडी का रोल आ गया। जो बच्चा अच्छा कर रहा है वो सेल्फ स्टडी ज़्यादा कर रहा है, और जो अच्छा नहीं कर रहा है वो सेल्फ स्टडी उतना नहीं कर रहा है। तो सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने जो भी सी क्लास में क्या होता है, क्लास में टीचर चीज़ें चीज़ें आपके लिए आसान कर देंगे, आपको एक डायरेक्शन दे देंगे। मोस्टली मेहनत तो फिर आपको ही करनी है। जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, जो आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, जो उस पर क्वेश्चंस करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको ही करनी है। तो आपकी तैयारी का मेजर पोर्शन जो होना चाहिए वो सेल्फ स्टडी ही होना चाहिए। तो सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा आई विल एम्फसाइज, एंड सेल्फ स्टडी को आप लोग भी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब क्लास तो ठीक है, मेनली इट्स सेल्फ स्टडी जो आपको हेल्प करेगा क्रैक करने में। थैंक यू सलमान भाई। अनदर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, कि क्लास में जाना है, कोचिंग में जाना है, ट्रैवल करना है, फिर टाइम निकालना है स्टडी करने के लिए, तो टाइम को कैसे मैनेज किया जाए? हाँ, देखिए इसका बेस्ट तरीका ये है कि मेरे हिसाब से टाइम टेबल बनाना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, एंड बाकी लोगों को भी कहता हूँ कि इन जनरल लाइफ में जो है ना स्केड्यूल होना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए। मैं खुद भी गूगल कैलेंडर बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एंड आई आई टेल एवरीवन के वहाँ से रिस्पॉन्स होता है लोगों का कि हम टाइम टेबल बनाते हैं बट फॉलो नहीं हो पाता है। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, मेरा भी नहीं होता है और किसी का भी नहीं होता है। तो टाइम टेबल बनाने से क्या होता है, फायदा ये होता है कि अगर आप टाइम टेबल ना बनाएं तो आप बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं रहते हैं। आप टाइम टेबल बना लें तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वो 100% कभी नहीं होगी, वो फॉलो कभी नहीं हो पाएगा। बट मान लेते हैं कि यार टाइम टेबल आपने बना लिया और पूरा फॉलो कर लिया, तो उसको हम मान लेते हैं कि दैट इज 100% एफिशिएंट। तो अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे ना, तो आपकी एफिशिएंसी रहेगी 20%। और टाइम टेबल बना लिया आपने तो आप पूरा फॉलो नहीं करेंगे, बट एफिशिएंसी 60% हो जाएगी आपकी। तो टाइम टेबल का वो फायदा होता है। तो टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता है कि आपको 100% फॉलो करना है उसको, और 100% फॉलो नहीं हो पाया तो आप टाइम टेबल बनाना बंद कर देंगे। वो नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल अगर आप बना रहे हैं तो ट्राई टू फॉलो इट एज मच एज पॉसिबल। तो जब भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैं टाइम टेबल बनाता हूँ, नॉर्मल डे से वो बेटर होता है। परफेक्ट तो नहीं होता, बट नॉर्मल डे से वो बेटर होता है। तो आप लोग सारे, मुझे पता है कि वो फॉलो नहीं होता है, आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा और वो कभी भी पूरा फॉलो नहीं हो पाया होगा, बट फिर भी बनाइए टाइम टेबल, बिकॉज वो आपके नॉर्मल डे से तो बेटर ही रहेगा। स्केड्यूल बना के रखिए। अगर आप स्कूल कोचिंग जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो टाइम हटा दीजिए। उसके अलावा एक स्केड्यूल बना के रखिए कि इस टाइम पे मुझे इतना पढ़ना है, इतने बजे तक पढ़ना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। एंड मल्टीपल स्केड्यूल्स बनाएं। एक शॉर्ट टर्म स्केड्यूल बनाएं, डेली स्केड्यूल के डेली मेरा ये स्केड्यूल रहेगा, या डेली मेरे ये टारगेट्स रहेंगे। फिर एक वीकली स्केड्यूल बनाएं, वीकली टारगेट्स बनाएं। फिर एक मंथली टारगेट्स बनाएं। इन सब को बनाएं। इन सब से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जब सामने में स्केड्यूल होता है, गोल होता है, टारगेट्स होते हैं, तो डेफिनेटली इट वर्क्स। हमें क्या लगता है, हम ये चाहते हैं कि एकदम 100% एफिशिएंसी से फॉलो हो, वो नहीं होगा। तो वो होता है हमारी लाइफ में क्या होता है, या तो हम चीज़ों को 100% करना चाहते हैं या फिर छोड़ ही देते हैं, वो बीच वाला मिडिल पाथ पे नहीं लेते। तो डेट इज इम्पॉर्टेंट कि आप ये सब स्केड्यूल बनाइए और जितना हो सकता है फॉलो करिए। फॉलो नहीं हो पा रहा है तो छोड़िए मत, जस्ट कीप ऑन डूइंग। आज आप उसको फॉलो करेंगे विथ 30% एफिशिएंसी, कल करेंगे 40%, फिर 50%, तो वैसे वो इंक्रीज होता रहेगा। बाकी अगर आने जाने में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है थोड़ा बहुत, तो इट्स फाइन, वो डेट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रिपरेशन। उतना होगा, आई मीन उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो दिन में थोड़ा बहुत जो है वेस्टेज रहता है, चाहे आने जाने में हो, चाहे आपका इधर उधर थोड़ा एंजॉय करने में विद फैमिली विद फ्रेंड्स। डेट इज वो होना भी चाहिए। लाइक आप 24 घंटे अगर इसी में रहेंगे तो आप खुद भी जो है ना थोड़ा सा डिप्रेस हो जाएंगे। तो डेट इज फाइन। तो आई गेस यस। थैंक यू सो मच सलमान भाई। एक सवाल पूछा है मसीउस जमन भाई ने, तो शुड वी ऑप्ट डमी स्कूलिंग प्लस कोचिंग और रेगुलर स्कूल प्लस कोचिंग? व्हाट यू सजेस्ट? मेरा सजेशन ये है कि डमी स्कूल प्लस कोचिंग करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि बहुत रिगरस प्रिपरेशन होती है इंजीनियरिंग एंट्रेंस या मेडिकल एंट्रेंस दोनों की। और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा जो है वो स्कूल में मिलता नहीं है 11th 12th में। जो भी स्कूल में स्टूडेंट्स को सीखना होता है वो 10th तक वो सीख चुके होते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है अगर वो स्कूल जा रहे हैं रोज़, इनफैक्ट टाइम ही वेस्ट होता है। एंड जहाँ तक स्कूल की चीज़ें हैं, जहाँ तक बोर्ड्स की चीज़ें हैं, वो जेई और नीट प्रिपरेशन में ही कवर हो जाती हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स को एंड पेरेंट्स को ऐसा लगता है
कि ये बोर्ड्स अलग है, जेई नीट प्रिपरेशन अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों में करिकुलम, सिलेबस, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर। बस क्वेश्चन पूछने का अंदाज डिफरेंट है। जो बोर्ड एग्जाम्स है वहाँ पे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो एंट्रेंस एग्जाम्स है वहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो इसीलिए दोनों एकदम सिमिलर प्रिपरेशन है। अगर आप डमी स्कूलिंग करेंगे तो चांसेस ये हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन, एंड डेफिनेटली रिजल्ट जो है इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, आप अच्छा कर सकेंगे। और बाकी जो बोर्ड्स है वो आप बोर्ड्स जाके दे देंगे एंड में, आई थिंक उसमें भी आप अच्छा करेंगे। थैंक यू सलमान भाई। एक सवाल है, बुक से रिलेटेड कौन सी बुक्स एफिशिएंट होंगी फॉर ईच सब्जेक्ट फॉर आईटी जेई एस्पिरेंट्स? तो ठीक है, बुक्स के बारे में आई टेल यू कि सबसे पहली चीज़ है कि मल्टीपल बुक्स खरीद कर अपने पास नहीं रखना है। बिकॉज बच्चे यही करते हैं कि बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं और फिर क्या करते हैं, हर एक बुक से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड यूजुअली क्या होता है कि मान लेते हैं कि मैंने मैथ्स की 5 बुक खरीद ली, एक चैप्टर चल रहा है मेरा क्लास में सीक्वेंस सीरीज, और मैंने एक पहली बुक उठाई। तो पहली बुक उठाई मैंने, वहाँ पे मान लेते हैं 200 क्वेश्चन से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो मुझसे 20-25 क्वेश्चन हो गए सॉल्व, और आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो मैंने बंद कर दी बुक। अब दूसरी बुक उठाई, दूसरी बुक से भी सेम चीज़ करना स्टार्ट किया, वहाँ पे भी 200 क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट किया, 20-25 क्वेश्चन हो गए, आगे हुए नहीं, उसको भी बंद कर दी। फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया। आपने हर बुक से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। बिकॉज हर हर बुक में जो इजीएस्ट 25 क्वेश्चन थे वो आपने सॉल्व कर लिए। तो इनफैक्ट आपने 25 क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिए। आपने मान लेते हैं कि 4 बुक्स हैं, 4 बुक से 25-25 करके 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बट एक्चुअल में वो 25 क्वेश्चन ही हैं, बिकॉज वो सारे सिमिलर क्वेश्चन थे, सारे सेम कॉन्सेप्ट से। तो इसीलिए एंड ये बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। तो इसीलिए मेरा एडवाइस ये है कि जब भी आप सॉल्व करें, एक बुक उठाएं, उसको एंड टू एंड कंप्लीट करें, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तभी फिर आप दूसरी बुक पे जाएं। एंड क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये भी नहीं होना चाहिए कि आपको कोई एक सब्जेक्ट बहुत पसंद है, मान लेते हैं कि लेटेस्ट से केमिस्ट्री बहुत पसंद है, तो आप केमिस्ट्री की 5 बुक सॉल्व कर रहे हैं, आपको मैथ्स भी करना है, आपको फिजिक्स भी करना है, अगर आप नीट करें तो आपको बायो भी करना है। तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स में इक्वल इंपॉर्टेंस और इक्वल टाइम देना है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर बहुत पसंद है तो आप उसको बस सॉल्व किए जा रहे हैं हर एक बुक से, वैसा नहीं होना चाहिए। इक्वली चैप्टर्स में भी टाइम देना है, इक्वली सब्जेक्ट्स में भी टाइम देना है। जहाँ तक बुक की बात है, सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं तो बेस्ट ये है कि उस कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व करें। बेस्ट तो यही रहेगा कि कोचिंग के मॉड्यूल्स को ही सॉल्व करें, बिकॉज उसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं, एंड टू एंड सब कुछ कवर होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं। एक बार कोचिंग का पूरा मॉड्यूल सॉल्व हो गया तो उसके बाद फिर आप कोई बुक सॉल्व कर सकते हैं। बट बेटर ये रहेगा, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं तो पहले मॉड्यूल्स को पूरा सॉल्व कर लें। एंड जैसे मैंने बोला कि जो भी आप स्टार्ट करें उसको एंड टू एंड कंप्लीट करें, पहले आधा छोड़कर दूसरी चीज स्टार्ट ना करें। मान लिया कि कोचिंग मॉड्यूल आप सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉड्यूल आपने आधा किया फिर आप बुक पे आ गए, या पहले जैसे मैंने बताया बुक आधा किया दूसरी बुक स्टार्ट कर दी, वो नहीं होना चाहिए। तो स्टिक टू योर मॉड्यूल अगर आप कोचिंग में हैं। अगर आप कोचिंग में नहीं हैं या आपने अगर मॉड्यूल कर लिया और आप बुक सॉल्व करना चाहते हैं, तो आई विल से कि मैथ्स में आई गेस अरिहंत की सीरीज आती है, आप मैथ्स में वो कर सकते हैं। और फिजिक्स में, मैथ्स में आई विल से कि मॉड्यूल प्लस अरिहंत सीरीज कर सकते हैं, प्लस ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और फिजिक्स में आई विल से कि मॉड्यूल्स कर सकते हैं आप, HC वर्मा कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं। केमिस्ट्री में अगेन इन सब में आपको NCERT भी देखना है। इस पे भी अगर आप नीट दे रहे हैं तो डेफिनेटली NCERT को बहुत ज़्यादा रिगरसली फॉलो करना है। जेई दे रहे हैं तो जेई में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में ऑफ कोर्स NCERT तो आपको करना ही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ही करना है। एंड मॉड्यूल्स के अलावा आई गेस ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान आप कर सकते हैं। और फिजिकल इनऑर्गेनिक में आई मीन बहुत सारी बुक्स हैं, और स्पेसिफिकली मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, मॉड्यूल्स ही करिए। अदरवाइज बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं, कोई एक बुक आप सॉल्व कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान करना चाहिए। और सलमान भाई, नीट के लिए बुक्स का भी पूछा जा रहा है, उस पर कुछ आपकी राय? देखिए, नीट में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है NCERT पे। तो बायोलॉजी में मैं बोलूँगा NCERT, क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
फिजिक्स में एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लास नोट्स एंड फिजिक्स में डीसी पांडे कर सकते हैं. केमिस्ट्री में अगेन आई विल से के एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉड्यूल्स, और ऑर्गेनिक में एमएस चौहान नीट के लिए. बट एनसीईआरटी रिगरसली करना पड़ेगा फॉर नीट, एंड ऑफ कोर्स जेई मेन भी. एक नोट्स बनाने के एतबार से पूछा है कि शॉर्ट नोट्स लेक्चर टू लेक्चर बनाएं या पूरा चैप्टर होने के बाद बनाएं. शॉर्ट नोट्स जो हैं वो लेक्चर टू लेक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, और उतना फ़ायदा भी नहीं होगा. शॉर्ट नोट्स आपको बनाना चाहिए पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, जब आप सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं उस चैप्टर के, पूरी थ्योरी समझ चुके हैं, सारे नोट्स रिवाइज कर, आई मीन क्लास नोट्स से रिवाइज कर चुके हैं. तो एक बार जब आपके माइंड में क्लियर पिक्चर बन गया है पूरे चैप्टर का, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए. डेली बेसिस पे नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज डेली बेसिस पे अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, वो चेंजेस होती रहती हैं आपके माइंड में भी. समझने का लाइक अंदाज बदल रहा होता है, कुछ चीज़ आपको समझ आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें विद टाइम समझ आती हैं. तो शॉर्ट नोट्स आपको एंड में बनाना चाहिए. Okay, so another question is how to decide if someone should take a drop for preparation or not. हाउ टू डिसाइड, ठीक है. और उसी के साथ एक और क्वेश्चन मिला हुआ है, इज इट वर्थ गिविंग ए ड्रॉप टू ट्राई फॉर आईआईटी और शुड वन टेक गुड यूनिवर्सिटी लाइक BITS, AMU or some NIT in first attempt? अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, बट आई विल से कि अपने अपने परफॉर्मेंस, जो आपका जो पहले साल फर्स्ट अटेम्प्ट में जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज कर लीजिए. अगर परफॉर्मेंस बॉर्डर लाइन है तो ऑफ कोर्स यू कैन टेक अ ड्रॉप. अगर परफॉर्मेंस बिलो पार है तो बेटर है कि ड्रॉप ना लिया जाए, बिकॉज यू नेवर नो कि एक साल में आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे. बॉर्डर लाइन में क्या होता है कि ऑफ कोर्स चांसेस होते हैं कि आप वहाँ तक पहुँच पाएँ. तो बॉर्डर लाइन केसेस में आई वुड रिकमेंड कि आप ड्रॉप लीजिए. बट अगेन आई विल से कि अपने आप माइंडसेट को भी देख लीजिए. अगर आप लाइक बिल्कुल पॉजिटिव हैं एंड आपको लगता है कि आप, क्योंकि अगेन 2 साल आपने तैयारी की है, अब 1 साल और तैयारी करना है. 1 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम, एंड आपको लग रहा है कि आप पूरे 1 साल जो है पॉजिटिव रह सकेंगे, कॉन्सिस्टेंट रह सकेंगे, मेहनत कर सकेंगे, तो मैं कहूँगा कि अगर ये सारे टिक मार्क्स हो रहे हैं तो मैं कहूँगा कि ड्रॉप ले लीजिए. वर्थ इट, ऑफ कोर्स बॉर्डर लाइन केस है, आप आईआईटी पहुँच सकते हैं तो वर्थ इट है ऑब्वियसली. आपको लेना चाहिए. वैसे भी 2 ही अटेम्प्ट्स होते हैं जेईई एडवांस्ड में, तो आप ले सकते हैं, एंड डेफिनेटली इट्स वर्थ इट. थैंक यू सो मच सलमान भाई एंड जजाकल्लाह खैर अगेन. नो, हम 5 मिनट हमारे पास, 4 नहीं 5 6 मिनट हमारे कुछ पास है. क्वेश्चंस आई गेस यहाँ पे भी चैट में, ये भी मैं जी पढ़ूंगा. जी, चैट से मैंने मेंशन कर दिया है. आपने तो अच्छा अपने चैट से पढ़ लिए हैं सारे क्वेश्चंस. तो अब मैं क्या बोलूँगा कि अगर किसी को अनम्यूट करके कोई सवाल करना है, सो दे कैन डू दैट. दे कैन रेज देयर हैंड. एक सवाल आया, इस फिजिक्स बुक बाय DC पांडे गुड फॉर स्टडिंग बेसिक कांसेप्ट्स आल्सो और इट इज फॉर एग्जाम क्वेश्चंस प्रैक्टिस? अगेन मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि ऑलवेज लाइक जो क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, क्लास नोट्स को फॉलो करें. क्लास में जो पढ़ाया गया उसको चीज़ें वहाँ से चीज़ें समझें, एंड बुक से बस बुक्स एंड मॉड्यूल से ना बस क्वेश्चंस को सॉल्व करें. बिकॉज अगर आप वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, एंड एक तो टाइम भी वेस्ट होगा, एंड वहाँ पे वो एक बुकिश टाइप का अप्रोच होता है. तो फिर अगर क्लास में आप ये चीज़ें समझेंगे तो क्लास में क्या होता है, वो सारी बुक्स का लाइक एक निचोड़ दे देते हैं फैकल्टी, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा. तो ऑलवेज आई रिकमेंड कि बुक्स हों या चाहे मॉड्यूल्स हों, आप उनको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही फॉलो करें. थ्योरी एंड ऑल वो क्लास एंड क्लास नोट्स से करें. थैंक यू सलमान भाई. और किसी का कोई सवाल अगर हो तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है. सो वी हैव 5 minutes लेफ्ट. फैसा फैसा आप पूछ सकते हैं. Good evening, sir. गुड इवनिंग. Yes, so I am currently in class 11th and I will be giving NEET 2025. I wanted to ask that if I am already practicing questions in a timed manner, do I still have to attempt 3 hours full question paper like chapter wise? That is my आप Thank you're preparing for NEET, right? yes, sir. Yeah. So I mean, even if you are even if you are like solving questions using a timer and you are doing a timed practice, it is very very important that you give a proper 3 hour 20 minutes paper. The reason is because there are a lot of things which you have to strategize in a 3 hour 20 minute exam. For example, which subject you should solve first, how much time should you give to the subject which you solve first. For example, let us say you are solving biology. तो
you should know when to end the bio portion. So like, for example, you can give 45 or 50 minutes for biology, and then probably next 1 hour for the next subject. So these strategies are also very, very important. And plus, it's very important that you sit in an exam hall, because again, solving a paper for 3 hours 20 minutes at home and solving a paper for 3 hours 20 minutes in an examination hall, both are very, very different, right? So a real feel is very, very important, so that you get an actual examination feel, and you strategize which subject to start with, which subject to solve second, what to do in the last 20 minutes, how to mark the OMR, whether to mark the OMR one by one or whether to mark the OMR in chunks, right? What like I told you guys earlier as well, what symbols to use in the examination hall on your question paper for marking questions to review, for marking questions which you have done, for marking questions which you are not sure, etc., etc. So in conclusion, it's very important that you give a proper 3 hour 20 minutes exam regularly, that too in an examination hall. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सलमान भाई। और एक बार मैं याद दिला दूं आप लोगों को कि हमारा जो फीडबैक फॉर्म है वो चैट में दे दिया गया है। आप लोग फीडबैक ज़रूर दें कि आपको सेशन कैसा लगा। हमारे पास 2 मिनट हैं, अगर क्विकली किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। मसीहुज़्ज़मन साहब ने शायद हैंड रेस किया था, बट आई एम अनएबल टू सी हिम नाउ। एक सवाल जो आ रहा है वो शुएब भाई का है, हाउ शुड मुस्लिम्स सेट अप देयर मोटिवेशंस इन लाइन विद देयर फेथ व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स? ऑफ कोर्स, सी ऐसे एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए हमेशा एक पॉजिटिव इंटेंशन भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो हमें एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि हम जब नीट क्रैक करेंगे, एक डॉक्टर बनेंगे, तो ऑफ कोर्स विल एक अच्छी नीयत से काम करेंगे, विल ट्राई टू हेल्प एवरीवन इंक्लूडिंग आवर कम्युनिटी। और आई मीन जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी, फॉर एग्जांपल लेट अस से कि ऑफ कोर्स हमें पैसे भी कमाने हैं, लेट अस से कि इफ यू आर लाइक वर्किंग इन अ क्लिनिक, हमें पैसे भी कमाने हैं। तो आई मीन इन योर क्लिनिक हर टाइप के पेशेंट्स आएंगे, तो व्हाट यू कैन डू इज के you can charge people who can pay, and you can have a free slot for people who can't pay, who are poor. तो ये सारे intentions हमें हर एक फील्ड में होना चाहिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग, तो भी ऐसा इंटेंशन लेके चलना चाहिए कि इन जनरल ऑल्सो विल ट्राई टू हेल्प एवरीवन, और अपनी कम्युनिटी को स्पेशली हम हेल्प करेंगे, चाहे जो भी हम काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, लेट अस से इफ आई एम टीचिंग हियर, इफ आई एम लाइक प्रोवाइडिंग कोचिंग टू स्टूडेंट्स, मेरा इंटेंशन ये होना चाहिए कि ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी हेल्प की जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनको अच्छे से अच्छी जगह पढ़ाया जाए, अच्छे से अच्छी इंजीनियर्स या डॉक्टर्स बनाए जाएं। तो इस इंटेंशन के साथ आई थिंक वी शुड प्रिपेयर फॉर जेईई एंड नीट। प्लस ऑब्वियसली आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं बाकियों के लिए, तो आप आसपास में भी एक इंटेंशन बना सकते हैं कि अगर आप ये एग्जाम्स क्रैक करेंगे तो आपके आसपास लोग जो है वो आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे मोटिवेट होंगे। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपके आसपास वाले लोग जो हैं आपसे इंस्पायर होंगे, तो उसका सवाब सारा आपको भी मिलेगा। यस, तो ये इंटेंशन हमें रखने चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर सलमान भाई, और मेरे ख्याल से बड़े अच्छे ही सवाल और जवाब के साथ हमारा सेशन एंड होने जा रहा है। और थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने भी ज्वाइन किया है, और थैंक यू सो मच सलमान भाई अगेन। थैंक यू फॉर लाइक कंडक्टिंग दिस सेशन। बहुत ही अच्छा सेशन अल्हम्दुलिल्लाह रहा है। थैंक यू फॉर लाइक ब्रिंगिंग सो मेनी पीपल, एंड आई एम वेरी हैप्पी के इतने सारे स्टूडेंट्स एंड जो पेरेंट्स या बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इस प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। एंड आई होप के आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि आप लोग जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं थ्रू कलम यूथ कलेक्टिव, एंड आई विश यू द बेस्ट। प्लीज़ कंटिन्यू दिस ग्रेट वर्क, एंड इसको करते रहें और भी सेशंस ऑर्गेनाइज करवाएं। एंड ऑफ कोर्स मैं भी कोशिश करूँगा इसमें कंट्रीब्यूट करने की, बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आई एम रियली लाइक वेरी हैप्पी to see this kind of work
and thank you for calling me for this session today. बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया। खैर सलमान भाई। और एक बार मैं फिर से ध्यान दिला दूं कि आप लोग फीडबैक फॉर्म ज़रूर भरें। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पेशली जुहैर भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम को, बट आपको भी स्पेशली बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सलमान भाई। ठीक है, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह भाई, सी यू। जज़ाकल्लाह। बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत ही इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन। जज़ाकल्लाह एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।